Hello students, a very big and warm welcome to all of you. I hope you all are doing great. So children, before starting the session, let me introduce myself to you. This is Pooja Rawat and I am going to teach you an interesting subject which is computer. So in today's class, we are going to start our very first chapter which is different types of computers. In this chapter, we are going to learn about the types of computers. Computer is an electronic machine which performs various tasks at a very short span of time. Computers are designed for various purposes. We can classify computers as, तो हम सबको पता है कि कंप्यूटर एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है और हमारे बहुत सारे टास्क ये मिनटों में कर देती है. तो कंप्यूटर जो है वो डिज़ाइन ही किया गया है वेरियस पर्पसेस के लिए. तो कंप्यूटर को कैसे अलग अलग पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है ये इस चैप्टर में हम जानेंगे. So computers based on functionality. First is analog computer. Second is डिजिटल कंप्यूटर एंड द थर्ड वन इज हाइब्रिड कंप्यूटर. अब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन साइज की. तो साइज के बेस पे अगर हम बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं, आपके मिनी कंप्यूटर्स होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं और सुपर कंप्यूटर्स होते हैं. तो इनके बारे में डिटेल में हम इस चैप्टर में बात करेंगे. फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट on the basis of functionality. According to functionality, computers are of three types. First one is analog computer. These were the earliest and regarded as the most complicated machines. These are used to process analog data and store data in a continuous form of physical quantities and perform calculations with the help of measures. These are excellent for situations which require data to be measured directly without converting into numeral or codes. तो ये आपके अर्लीस्ट माने जाते हैं और ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स मानी जाती है. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, देखने से देखो कितनी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है. इसमें आपको पता नहीं चल रहा कि कौन सा बटन किस चीज़ के लिए वहाँ पे दिया गया है. तो यहाँ पे आपके जो डेटाज होते हैं वो कंटिन्यूस फॉर्म में होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड परफॉर्मेंस कैलकुलेशन के बेस पर. और ये आपके एक्सीलेंट होते हैं सिचुएशन जैसे कि रिक्वायर्ड होती है किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए और डेटाज को कन्वर्ट करने के लिए इनटू न्यूमरल्स और कोड्स. Now let's talk about digital computers. These computers store data in terms of digits, numbers and proceed in discrete steps from one state to next. This type of computer typically includes some sort of device to store information, some method for input and output of data and components that allow mathematical operations to be performed on stored data. तो डिजिटल कंप्यूटर्स आपके इस तरीके के होते हैं और ये कंप्यूटर्स आपके डेटास को स्टोर करते हैं इन टर्म्स ऑफ डिजिट यानी कि नंबर्स में और उनको प्रोसीड करते हैं डिक्रीट स्टेप्स में. ऐसे कंप्यूटर्स जो होते हैं इनमें आपके कुछ सॉर्ट ऑफ डिवाइस होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है डेटास को स्टोर करने के लिए और कुछ मेथड्स को इसमें इंक्लूड किया जाता है इनपुट एंड आउटपुट ऑफ डेटास के लिए. नेक्स्ट इज हाइब्रिड कंप्यूटर्स. इस तरीके के आपके हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं. दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर्स. दे कंबाइन द बेस्ट फीचर्स ऑफ दीज कंप्यूटर्स, i.e. they have speed of analog computers and memory and accuracy of digital computers. These are used mainly in specialized applications where both kind of data needs to be processed. तो ये आपके मेनली यूज़ किए जाते हैं एप्लीकेशंस पे, कुछ स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन पे जहाँ पे आपके दोनों तरीके के डेटास को यूज़ किया जाता है, उनको प्रोसेस किया जाता है. काफ़ी हाइब्रिड कंप्यूटर्स इनको माना जाता है क्योंकि ये कॉम्बिनेशन माने जाते हैं डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर का, जिनके बारे में अभी हमने पहले बात की थी.
on the basis of size. So according to size, the computers are of 4 types. कौन से हैं? First is microcomputers. These are small in size and depend on single chip, which is known as microprocessor. These are generally single user computer. Hence, they are also called personal computers or PCs. Some examples of microcomputers are, तो माइक्रो कंप्यूटर्स जो होते हैं साइज़ में छोटे होते हैं और इनको डिज़ाइन ही पर्सनल यूज़ के लिए किया जाता है, इसलिए इनको पीसीज कहते हैं. जैसे आपके घरों में जो कंप्यूटर देखने को मिलता है वो आपका एग्जांपल है माइक्रो कंप्यूटर का. So desktop computer, these are designed in such a way that fit entirely on a desk or a table. They are mainly used in schools, houses, offices, etc. ठीक है, इस तरीके के आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं. डेस्कटॉप क्यों कहा जाता है कि आप गेस कर सकते हो, क्योंकि इनको डेस्क पे टेबल पे रख के काम किया जाता है. इसमें कीबोर्ड होता है, माउस होता है, सीपीयू होता है, जो सिर्फ डेस्क पे ही रख के किया जा सकता है. आप इसको अपने साथ कैरी नहीं कर सकते. और आप कहाँ देखते हो इनको? अपने स्कूल में, हाउसेज में, ऑफिसेज में देखते हो. Next are laptops. These are smaller in size and portable. These can be taken at anywhere and run on rechargeable batteries. So children, as you can see, यहाँ पे आपको पिक्चर दिया गया है लैपटॉप का. लैपटॉप इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि लैप पे रख के आप इजीली इस पे काम कर सकते हैं और ये पोर्टेबल होता है, साइज़ में काफ़ी छोटा होता है. इसमें बैटरी जो होती है वो इनबिल्ट ही होती है, तो आप बस इसको चार्ज कर सकते हैं और अपने साथ कहीं भी लेके जा सकते हैं. Next is tablets. These are special types of computers which are smaller than a notebook computer but larger than a smartphone. These are equipped with several advanced features like camera, touch screen, microphone, etc. So as you can see children, this is tablet, जिनको हम टैब्स भी कहते हैं. अगर साइज़ वाइज मैं बताऊं आपको तो ये लैपटॉप से साइज़ में छोटा होता है और स्मार्टफोन से बड़ा होता है. ठीक है, इसमें आप के टच स्क्रीन के साथ ही आता है जिसमें इजीली टच करके आप मूवीज़ वगैरह देख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, कोई ऐप वगैरह ओपन कर सकते हैं. नेक्स्ट इज PDAs. These refer to personal digital assistants. They are handheld computers and function as a cellular phone, fax sender, web browser and personal organizer. With the change in technology, PDA has become obsolete as a device like a touch screen. Smartphones and tablets grow in popularity. तो ये आपका PDA है. ठीक है, एज यू कैन सी इसमें आप कॉल कर सकते हो, कुछ टाइप करना है तो वो आप कर सकते हो क्योंकि इसमें आपको मिनी कीबोर्ड देखने को मिल जाता है. तो ये आपका एक तरीके का क्या है, ऑर्गेनाइज़र है जिसमें आप फैक्स कर सकते हो, फ़ोन कर सकते हो, किसी को ईमेल भेजना है तो वो आप भेज सकते हो, वेब ब्राउज़र को आप इसमें ब्राउज़ कर सकते हो. तो बहुत सारी क्वालिटीज़ के साथ, फंक्शंस के साथ ये आता है. नेक्स्ट इज़ वर्क स्टेशन. A workstation is essentially any computer. It generally has been considered a computer that requires a lot of power for processing files such as drafting, desktop publishing, graphic designing, video editing and programming. Because of large amount of resources needed, these workstations may not have a disk drive and could be connected to centralized system that has enough space and power to handle the software and storage requirements. तो ये आपका वर्क स्टेशन का एग्जाम्पल है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे क्या होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं जिन पे लोग काम करते हैं. और ये कंप्यूटर जो होते हैं, सारे कंप्यूटर्स एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं क्योंकि इनमें इतनी स्पेस नहीं होती है डेटाज वगैरह स्टोर करने की. लेकिन जो सेंट्रलाइज कंप्यूटर होता है वो काफ़ी बड़ी ह्यूज स्पेस स्टोरेज के साथ आता है जिसमें आप अपने डेटाज को स्टोर करके रख सकते हो. Next are mini computers. These computers first developed by IBM corporations. They are designed mainly for business applications and services. They may be called as mid-range computers. तो ये आपके मिनी कंप्यूटर्स हैं. ठीक है, ये भी थोड़ा बहुत लैपटॉप की तरह ही दिखता है और ये ज़्यादातर आपके बिजनेस एप्लीकेशंस के साथ आता है. तो बिजनेस पर्पस के लिए ही इसे यूज़ किया जाता है, पर्सनल यूज़ के लिए बहुत कम.
Now let's talk about mainframe computers. These are large central computers with more memory, storage, space and processing power. These are primarily used by large organizations to perform critical tasks. These are designed to handle high volume input and output I/O and emphasizes throughout computing. तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आपके ये हैं जो साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है, इतने बड़े होते हैं कि इनको रखने के लिए आपको एक बड़ा केबिन चाहिए होता है या फिर एक बड़ा रूम चाहिए होता है। ये आपके क्रिटिकल टास्क को परफॉर्म करते हैं और ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इसमें आप स्टोर करके रख सकते हो। जैसे एक कंपनी होती है, उसमें 1000 एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो उनका डेटा आप इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। ये डिज़ाइन किए जाते हैं आपके हाई वॉल्यूम इनपुट एंड आउटपुट को हैंडल करने के लिए। Now supercomputers. These are the biggest and more powerful computers. These are very expensive computers and are employed for specialized applications. So these are your supercomputers जो काफ़ी साइज़ में बड़े होते हैं, काफ़ी पावरफुल ये कंप्यूटर माने जाते हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो इनको बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ या आपके रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वाले ही अफोर्ड कर पाते हैं और इसको ये यूज़ कर पाते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए या फिर अपने बिजनेस रूल के लिए। Now do you know wearable computers are especially useful for applications that require more complex computational support. तो आपके जो वेरेबल कंप्यूटर्स होते हैं वो काफ़ी यूज़फुल माने जाते हैं ऐसी एप्लीकेशन के लिए जो कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है। नाउ पॉपअप क्विज, नेम सम सुपर कंप्यूटर्स। तो अगर आपने सुपर कंप्यूटर्स के बारे में सुना है तो उनके नाम आपको बताने हैं। नाउ नॉलेज बाइट्स। Computer is an electronic machine. Computers are designed for various purposes. On the basis of functionality, computers are of 3 types: analog computers, digital computers, hybrid computers. On the basis of size, computers are of 4 types: माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड सुपर कंप्यूटर्स। तो हम सबको पता है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे काम करती है और इसको डिज़ाइन ही किया गया है वेरियस पर्पसेस को परफॉर्म करने के लिए। और अगर हम बात करें इसके डिज़ाइन की तो अलग अलग इसके फंक्शनैलिटी के बेस पे इनको अलग अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया है। कुछ आपके एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं। अगर बात करें साइज़ की तो बहुत सारे कंप्यूटर्स आपने देखे होंगे जैसे मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर्स। नाउ टेक्नोविज। एनालॉग डेटा, इट इज़ अ डेटा दैट इज रिप्रेजेंटेड इन फिजिकल वे। फिजिकल वे में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर मीन्स इट इज़ एन इंटीग्रेटेड सर्किट दैट कंटेन्स ऑल द फंक्शंस ऑफ अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर। तो ये एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जिसमें सारे फंक्शंस होते हैं किसके, CPU के। Programming means it is a process of writing instructions that get executed by computer. तो प्रोग्राम का मतलब होता है कि जिसमें आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हो। तो ये आपका प्रोसेस होता है राइटिंग इंस्ट्रक्शन, जिसपे आपका कंप्यूटर वर्क करता है। जितने भी आपके इंस्ट्रक्शंस हैं उनको ये एग्जीक्यूट करता है। So children, I hope you understood the chapter really well. Now you will revise the chapter and yes, do not forget to practice the exercise.